Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Convergence. Convergence means has limit. A sequence is convergent if and only if it has limit. And limit is that real number whose every neighborhood leaves out only finite number. ये दो चीजें दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है. रियल तकलीफ देती है, बट जो चीजें तकलीफ देती हैं वो बहुत यूजफुल होती हैं, ठीक है. ये समझ लीजिए, ये मैथमेटिक्स की कीमोथेरेपी है, ठीक है. इसमें बाल उड़ जाते हैं, ठीक, बट उसके बाद रिलीफ हो जाता है. यू कैन कम बैक and become Yuvraj Singh again. So it's like real analysis a bit painful, but the best part, it is a very systematic. वो बताती है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं होना वो नहीं होना, साफ साफ बता देती है कि ये आपके बस का नहीं है, तो खामा का ट्राई मत किया जाए इस क्वेश्चन को. एंड साथ में ये बोलते कि हाँ ये हो जाएगा. So sequence AN and the questions about this sequence are whether it is bounded or not, monotonic or not, two separate questions. Once we need to handle this, because there may be option of a question, multiple choice question, or may be used for further analysis. So first point is monotonic or not, or bounded or not. ये दो मिल गए हमको. And then second, can we have a limit point? Can we judge it has this limit point or that limit point? Anyhow, just random कि it has limit point or not. Maybe by repetition, शायद repeat करने की वजह से हो जाए कि लिमिट पॉइंट है या नहीं है. आफ्टर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, ऑफकोर्स इंक्लूजन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस. तो ये ध्यान, पहला स्टेप, वेदर आई कैन सी इट इज बाउंडेड और नॉट. शुरू में दिख गया अच्छी बात है, भूल जाओ, आगे बढ़ जाइए तुरंत. इफ यू कैन फाइंड इट इज बाउंडेड, चेक इट आउट. इफ यू आर नॉट एबल टू क्लेम, डोंट अज्यूम इट इज अनबाउंडेड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू क्लेम. आपके बस की नहीं दिख रही कि बाउंडेड शो करना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाउंडेड नहीं है. इट मे बी बाउंडेड स्टिल, ठीक है. So, but don't assume then it is unbounded. Try to show it is bounded. If you are not able to show, don't assume it is unbounded. Maybe proved later on. So then try to think on the second phase. What is that? Monotonic. If it is monotonic or not, और उसके लिए एक तरीका ये है आपके पास कि an plus 1 minus an, इसका साइन चेक कर लिया जाए. If it is always positive, increasing, always negative, decreasing, it is always positive but for finitely many values. कुछ n को छोड़ के ये हमेशा पॉजिटिव है, दैट मीन्स इवेंचुअली इंक्रीजिंग. कुछ को छोड़ के हमेशा नेगेटिव है, इवेंचुअली डिक्रीजिंग. बट इट हैज इनफाइनाइट टाइम पॉजिटिव वैल्यूज, इनफाइनाइट टाइम नेगेटिव वैल्यूज, नॉट मोनोटोनिक एट ऑल. एक इससे मिल सकता है, तो एक मोनोटोनिक चेक करना. वंस इट फेल्स टू बी मोनोटोनिक, देन वी मे ट्राई टू गेट ऑड इवन एटलीस्ट. उसको तो देख ही सकते हो ना कि मे बी दैट ऑड इवन सब सीक्वेंसेज विच आर कॉम्प्लीमेंट्री आर मोनोटोनिक, विच हैपेंड विथ 11th example, with 12th example, with another 15th example, minus 1 by n, 1 plus 1 by n, and even odd. तो ये दो खुद मोनोटोनिक नहीं है, but separately monotonic. Even first example, it is not monotonic, but odd even are monotonic. So this is also possibility, not guarantee. If sequence is not monotonic, just try to see whether the complementary, at least which complementary, odd even, are monotonic or not. If yes, then you have lots of informations. If any of these two is bounded, sequence has limit point. Confirm? If both are monotonic, so sequence can have at most two limit point or may not have any single limit point, but 0 to 2 in between these three possibility, no limit point, one limit point and two limit point. Is feel हो रहा है? If a complementary pair of subsequences are monotonic, implies what? या तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, या तो एक होगा, या दो होंगे. ये तो मालूम चल रहा है ना. तो ये जो गुणा भाग करते हो कैलकुलेशन कि हमसे होता नहीं है कोई चीज, तो नहीं होने की वजह ढूंढो ना, क्यों नहीं होता. कहने से काम थोड़ी चलेगा. इफ यू आर सेइंग आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, नॉट एबल टू इम्प्लाई, तो कैसे होगा? कोई आपको कहे कि मैं करवा दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है. करना आपको खुद ही है. I can help you think in this way or that way, but ultimately you have to think.
सोचना तो आपको पड़ेगा ना, वो सोचना कैसे है वो तरीका डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. एज आई सेड, द मोमेंट यू हैव अ सीक्वेंस, ट्राई टू थिंक, क्वेश्चन कुछ भी हो, ट्राई टू थिंक वेदर इट इज बाउंडेड और नॉट, monotonic or not. If yes monotonic, then can have one limit point only. If not monotonic, we may think of complementary sequence. If they are at most two limit point, कुछ तो फायदा हो रहा है ना, एक कैलकुलेशन ये खत्म होती है. Then you have a concept of limit. We need to find a real number whose every neighborhood leaves out only finite members. ऐसा कोई रियल नंबर मिल जाए, ऐसा कोई रियल नंबर मिल जाए जिसके हर नेबरहुड के बाहर फाइनाइट मेंबर हो, और रियल नंबर इज रिक्वायर्ड हुज एवरी नेबरहुड लीव्स आउट फाइनाइट मेंबर्स. इसको क्या हो गया? ठीक है, जब क्लास लंबी होने लगती है ना तो बच्चे वहां देखते हैं, कई बार मुझे फील होता है ये ऐसे ऐसे आंखों से घुमा भी देंगे उसको. ठीक है सर इतना टाइम हो गया, इतने स्ट्रांगली आप लोग उसको देखते हो, इस वाली क्वेश्चन देखो तो ज्यादा आसान हो जाए. सो अपना सारा पोटेंशियल इसमें इस्तेमाल करो. 4-5 महीने की बात है, उसके बाद तो आदत पड़ जाएगी इन हरकतों की. ठीक है, ट्राई टू मेक अ मैकेनिज्म, इवॉल्व अ मैकेनिज्म, हाउ यू स्टडी, हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम, हाउ यू थिंक ओवर प्रॉब्लम. जिनका बहुत सारा गैप है उन्हें पता है, वो जबरदस्ती अगर अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर लेंगे मुश्किल है. If you have already seen your past education system from 12th, BSc and MSc, your average kind of student at your BSc level, MSc level, there are lots of students who are above your marks or above. तो ये तो मक्कारी तो प्रूफ हो रही ना, पहले कर चुके हैं, अब मौका मिला उसे दूर करने का. If at BSc level you are among the like mediocre kind of student, तो ऐसा नहीं था आप खराब स्टूडेंट थे, आप नहीं पढ़ते थे, मन ठीक है नहीं मन है, मैं तब भी पास हो जाऊंगा, और ये एटीट्यूड से कर रहे थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब वो काम नहीं आएगा ना. बट इसका यही है कि आपको एक्स्ट्रा लेबर करना होगा, जो कि उस समय जिसने मेहनत कर ली है उसे कुछ तो एक्स्ट्रा रिजल्ट आ चुके हैं, वहां आप गैप कर रहे हो. इससे दिमाग कम नहीं है आपका, ये तो कभी कोई नहीं मान रहा कि आपका दिमाग कम है, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है आपके पास नहीं है बस. सो आपको एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ेगा. वो 8 घंटे पढ़ रहा है, आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा. आप भी 8 ही घंटे पढ़ो और वो एक्स्ट्रा भी है, तो भगवान से थोड़ी लिखा के लाया फिर भी आपको देंगे, आप ज्यादा अच्छे लगते हो. You have to fill this gap. तो बहुत लोग बच्चों को देख रहा हूं मैं जिनके पास गैप ज्यादा है. बीएससी का बहुत ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस मेरी भी है, आपकी भी होनी चाहिए. आपके पास गैप है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. आपकी क्लास में कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने पहले कुछ पढ़ लिया या बीएससी में थोड़ा ठीक से पढ़ लिया था. दैट इज व्हाट दे आर अहेड ऑफ यू. आपको आउटकम करना है, उसे आउट परफॉर्म करना है, आपको एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ेगा. And here you can be around 8 to 12 hours in DIPS Academy you can spend easily. अब मुझे बोलिए, मैं फैकल्टी लगा दूंगा, टीम लगा दूंगा आपके साथ. मुझे तो क्लास में एलसीएम लेके चलना पड़ेगा क्लास का, I have to take LCM of the understanding level. But parallelly if you want to go a bit below level, basic level, again I have team, मैं उनको असाइन कर दूंगा, उनके साथ बैठिए पढ़िए, और ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिए आप में गैप है. जहां आप ये भी कहते हो गैप है और ये भी कहते हो समझ में नहीं आ रहा है, तो रीजन भी आपको पता है ना, तो गैप फिल करो, समझ में आने लगेगा. गैप कैसे फिल होगा? यू आर एबल टू रिकॉल इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट. जैसे अभी हम लोग कुछ लिखा रहे हैं, कुछ लोगों को याद पड़ चुकी, वो करते ही ऐसे हैं, तो उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है. कुछ लोगों को फोर्सफुली कहना पड़ रहा है ऐसे करो, सी इट इज बाउंडेड और नॉट, सी इट इज मोनोटोनिक और नॉट, एंड देन एज पर योर, जैसे ना बाउंडेड, ये है मेरा बी, ये है एम, ये है एस सब सीक्वेंस, और फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री C1 C2 एंड यस नो, है ना, यस नो, इस तरह से आप बढ़ते जाइए. इफ यस एटलीस्ट वन इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड, व्हाट इज दैट? इट मस्ट हैव लिमिट पॉइंट. नो मे और मे नॉट हैव. इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट पॉइंट नहीं होगा. बी वेरी क्लियर ना, मे और if it is not bounded, may or may not have, and you have example for both. 4, 5, 6 unbounded, no limit point. 9, 8, 9 unbounded have limit points. Even 9 has infinite limit point, दो unbounded. So तुरंत आपके दिमाग में no, may or may not, and both are available. The counter example for both the possibilities are available. ये तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए. यही आपको सीखना भी. अब यहां खड़े होंगे तो यही करना पड़ता है आपको. आपका स्टूडेंट ये बोलता है सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, अब लग जाओ प्रूफ करने, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल दोस्त तुम तो बहुत होशियार हो, यही होना चाहिए। सर प्रूफ करो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो दोस्त, क्योंकि प्रूफ नहीं हो रहा वो। हाँ सर होगा नहीं, सर गिव मी अ काउंट एग्जांपल। अगर मैं कहूंगा गलत है ना, तो आई हैव टू प्रोड्यूस काउंट एग्जांपल। सो इफ आई से नो, दैट मींस मे और मे नॉट बी, आई हैव टू प्रोड्यूस बोथ द एग्जांपल्स एंड देन मोनोटोनिक। इफ यस, व्हाट आर द कंक्लूजंस? कुछ तो आए, एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट, वन लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, यही पॉसिबिलिटी हो रही है, एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट। इफ नो, nothing can be said. Yeah, this plus this, one at most, at least one, together one. Yeah, greater equal to one, less than equal to one, equal to one, number of limit point. If no, then we go for this. If I can find complementary pair of subsequence, again conclusion. At most two limit point, यहां at least at most one था, यहां at most two आ गया, because sequence is not monotonic, complementary sequence are monotonic. Example number one, example number one में है ना, तो वहां ऐसा हो रहा है। अब इसी तरह से अब ये हो गया, एंड देन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, लिमिट एंड कन्वर्जेंस। दीज आर टू दो इंडिपेंडेंट बट एसोसिएटेड एज वेल। लिमिट टू सर्च अ रियल नंबर अल्फा, कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस, ऑलमोस्ट एवरी मेंबर बट फाइनाइटली मैनी। इट कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी। ये तो कह रहा है कि इट लीव्स आउट ओनली फाइनाइट, सो रेस्ट आर इनसाइड। सो वी कैन से इट कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी। दिस इज स्टेटमेंट, इट मीन्स इट कंटेन्स ऑल except finitely many. If alpha is limit, the limit, it leaves out only finite member, and then we write limit a n equal to L. This notation means whatever neighborhood of alpha you choose, it leaves out only finite member. ये इसका मतलब है, it leaves out only finite member. ठीक है, ये इसका मतलब है। फॉर एनी एप्सिलॉन देयर, फॉर एनी डेल्टा और एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एम सच दैट वेन एवर एन इज इक्वल टू एम, ए एन बिलोंग टू दिस। बाहर कितने रह गए? फाइनाइट। सो ये अब क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आती है, एक सेट बना रहा हूं मैं, ये दिया हुआ है लिमिट ए एन इक्वल टू एल, एक सेट बनाया मैंने, ए के नाम दिया। ए के में वो आ रहे हैं नेचुरल नंबर, किसका सबसेट बनने जा रहा है? ये पढ़ते समय ध्यान रखते हैं, ये इसका सबसेट बनने जा रहा है एन का। ठीक है, कैसे? इसमें कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? ये एन फिक्स कर रही है, के फिक्स हो रखा है। विच नेचुरल नंबर? फॉर देम, फॉर द सीक्वेंस मॉड ए एन माइनस एल इज लेस देन 1 अपॉन के। व्हाट इज A1? टेल मी A1. n belongs to natural number such that A2 ये हो रहा है ना। जैसे ही सेट दिया जाए, पहले तो इसका पोस्टमार्टम कीजिए, ढंग से देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, किसका सबसेट बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। क्लियर? व्हाट यू कैन से अबाउट A1, A2, A3? इनके बारे में कोई कमेंट? A1 सही बात है, इससे लेस होगा तो इससे लेस होगा तो इससे लेस तो होगा ही होगा। जो n इसमें आ रहा होगा उसके लिए कंफर्म। तो A2 A1 में कंटेन हो गया, A3 A1 में कंटेन, A2 में कंटेन, एंड सो ऑन। और कुछ? और कोई कमेंट AI इसके बारे में? कोई भी कमेंट कर सकते हो। हम लोग आपस में कितना कमेंट करते हैं एक दूसरे ऊपर। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ ए के इज एल। ये किसका सबसेट है? इनकेशन क्या है कि नेचुरल नंबर आएंगे ना। मैंने शुरुआत ही सीखी थी, ये क्या बनने जा रहा है। रिमेंबर व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग आउट प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट समथिंग, सबसे पहले देखो वो सेट क्या बन रहा है, किसका सबसेट बन रहा है, किस तरह के एलिमेंट है। ये ए आईज में किस तरह के एलिमेंट है? नेचुरल नंबर्स। इट इज गोइंग टू सबसेट ऑफ
natural number. It has nothing to do with members of AN and K, at least as membership is concerned. अब कोई AI फाइनाइट हो सकता है? कोई एक आध AI कोई एक फाइनाइट हो जाए? ये वही तो है ना कि AK is set of those natural number whose suffix are out of this. ये मान लेते हैं एप्सिलॉन, तो AN belongs to L minus 1 L plus 1. जिन AN के लिए ये आ रहा होगा वही N AK में आएगा. तो कितने अंदर आएंगे, कितने बाहर होंगे? बाहर कितने होंगे? तो AK में कितने होंगे? AK इट विल कंटेन. तो व्हाट इज, अब ये नेट का क्वेश्चन है एज इट इज, ये डिफाइन किया उन्होंने, उसका ऑप्शन लिखा उन्होंने, ऑप्शन 1, AK में बी फाइनाइट फॉर ऑल N बिलोंग्स टू नेचुरल, ऑल K बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, AK is finite, infinite for some K only. C, AK is all of N. D, AK is all of N but finitely many. कंफर्म? ये नेट का क्वेश्चन है एज इट इज. आई मे हैव चेंज वन वर्ड हियर और देयर. एग्जैक्टली यही है. किस चीज से पूछ रहा है? डेफिनेशन पूछ रहा है ना, लिमिट की डेफिनेशन पूछ रहा है इस तरह से आपसे, है ना. अगर आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, इसको ठीक से देख रहे हो, किसका सबसेट आ रहा है, किस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, इस कहानी का क्या मतलब है, ये एलिमेंट कौन बिलोंग करेगा कौन नहीं करेगा, अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है. क्या बबल करोगे? पक्का? हाँ जी. क्या करना है? ऑफ करना है. क्या क्या? हाँ, तब ये नहीं होगा. तब उसका होगा एक इज ऑलवेज इनफाइनाइट, बट बाहर क्या होगा पता नहीं. हाँ, एक इज ऑलवेज हो गया, बंद नहीं हुआ. वो कौन सा वाला बंद हो गया? खड़े होके से रोक लो उसको एक बार. ठीक. क्या? दिस, यू टेल मी व्हाट इज द फ्रेमिंग ऑफ AK. आप ही सॉल्व करो ना उसको. देखो व्हाट इज AK. अरविंद केजरीवाल. ठीक है, क्लासनिकोव एज वेल. AK-47. AK इज सेट ऑफ दोज नेचुरल नंबर. यहां तो क्या आ रहा है? दोज नेचुरल नंबर, दोज N for which mod AN minus L is less than 1 upon K. For example, A1, AN minus L is less than 1. So, yeah, A2 is what? A2. N belong to natural number such that is N belongs to A2 if AN belongs to L minus half L plus half. यही तो लिखा हुआ है. And what is L? And given limit AN equal to L. L is limit of sequence AN. Now what is this? This is a neighbor of L. How many outside? So how many inside? Whenever AN is inside, that N is member of A2. So how many natural number will be in A2? This N belongs to A2 if this belong to this. ऐसे कितने AN है जो इसमें belong कर रहे हैं? How many? So this N will be how many N for which this is there? Infinite. So A2 has to be infinite. Similarly A3 1 by 3, they all has to be infinite. But how many outside? Finite. This is rather important. CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। इंपॉर्टेंट कि AK इज ऑल ऑफ n बट फाइनाइटली मैनी। अगर ये लिमिट पॉइंट हो जाता लिमिट की जगह तो ये आंसर गलत हो जाता, बिकॉज इट इज सेइंग दैट आउटसाइड फाइनाइट, लिमिट पॉइंट में आउटसाइड फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। तो दिस इज आंसर व्हेन इट इज टेकन टू बी लिमिट। AK इज ऑल ऑफ n बट फाइनाइटली मैनी का मतलब क्या होता है कि n माइनस AK इज फाइनाइट। दिस मीन्स n माइनस AK इज फाइनाइट। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में ऑल ऑफ n बट फाइनाइटली मैनी। ये मैथमेटिक्स में बोलते हैं ऐसे, ऑल ऑफ n बट फाइनाइटली मैनी। क्लियर? क्या? AK इज इनफाइनाइट फॉर, या फॉर ऑल K। आप बताओ, पक्का ना? गारंटीड? ठीक है, ये भी बबल कर दिया। अब कौन सा सही माना जाएगा? तो पार्ट सी में आएगा फिर ये, जहां दो करेक्ट होंगे, कोई इसमें आफत नहीं है। और ये अगर लिमिट पॉइंट होता ये बजाय, तब भी ये ऑप्शन हमेशा सही रहता, चाहे ये लिमिट हो या लिमिट पॉइंट। ये तभी होगा, ये लिमिट गारंटी तभी मिलेगी। नहीं सकता था ना, डज नॉट इंप्लाई, है ना? बबल कर्सर में ध्यान रखना, डज नॉट इंप्लाई। यही चीज सीखनी भी है, मतलब जो हम जितना हम जानते हो तो कंप्लीटली जाने की। ठीक, ओके, इट डज नॉट इंप्लाई, इट मे, ये कह रहा है AK इज ऑल ऑफ n बट फाइनाइटली मैनी, मतलब हमेशा बाहर फाइनाइट ही होंगे। दैट मीन्स यू आर टेकिंग दैट लिमिट पॉइंट हैज टू बी लिमिट, जबकि इट मे और मे नॉट बी लिमिट। क्लियर? सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन इन दैट केस। In this case, both are correct option. When limit point, let L be a limit point of sequence AN, then this is always correct, because this is a neighbor. It is what? The containment of those member for which those natural number that corresponding members are inside this neighborhood. If L is limit point, inside always infinite members. So this is always correct. ठीक है? कौन सा वाला? लास्ट वाला? अच्छा जी, एक एग्जाम्पल से बताएंगे आपको अब। सीक्वेंस AN इक्वल टू 1/n+3। इस सीक्वेंस के लिए आपको पता है ना क्या बनाते, कैसे सेट बनाना है? AK इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड AML इज लेस देन 1/k। इस सीक्वेंस को लीजिए और बनाइए A1 A2 A3। लेट्स वर्क ऑन न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द सीक्वेंस AN। डिफाइन A1, फाइंड A1 A2 A3। बताइए कौन कौन से हैं A1 A2 A3? व्हाट इज A1? पहले तो L क्या आएगा? व्हाट इज L? 0। व्हाट इज A1? दोज नेचुरल नंबर फॉर विच AN माइनस 0 इज लेस देन 1। क्या आएगा? दैट मीन्स n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/n+3 इज लेस देन 1। इट मीन्स वॉट? एक कुछ भी रख दीजिए यहां पर, तो A1 इज n। व्हाट इज A2? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/n+3 इज लेस देन 1/2। तो A2 इज n। व्हाट इज A3? ना, n belong to natural number such that 1/n+3 is less than 1/n3। अच्छा, इसमें भी आ जाएगा। A3 is n। A4, n belong to natural number such that 1/n+3 is less than 1/4। n इक्वल टू 1 पे ये 1/4 लेस देन 1/4 तो नहीं है, तो यहां क्या आ गया? n माइनस सिंगलटन। A5 में n माइनस डबलटन। सो है ना, A इसमें 1 बाहर हुआ, सो A5 में n माइनस 1, 2, A6 n माइनस 1,
2,3। अच्छा, इससे ए आर निकल आएगा, n माइनस 1 2 r माइनस 3। तो होशियार हो। A4 में कौन, यहां n रखेंगे जो जो साइड, तो n इक्वल टू रखिए 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इज लेस देन 1/4। नो, इट इज इक्वल। पुट n इक्वल टू 1, इस लेफ्ट हैंड साइड इज 1/4, 1/4 हैज टू बी लेस देन 1/4, बट इज नॉट करेक्ट, सो 1 इज नॉट देयर इन, बट इफ यू पुट 2 हियर, तो 1/5 इज लेस देन 1/4, so 2 onward they all are there, so 1 is outside। अब इसमें देखिए जो भी आ रहे हैं they all are AR for any R is n, और यहां कितने आ रहे हैं फाइनाइट, so what is AK is all of n but finitely many। कितने नहीं आ रहे हैं, फाइनाइट बाहर छूटेंगे हमेशा, क्योंकि ये उसकी लिमिट है। तो कुछ में आ भी रहे, कुछ में नहीं भी आ रहे हैं, कंफर्म, बट आएंगे तो इनफाइनाइट, और जो बाहर होंगे वो कितने होंगे फाइनाइट। तो उसने जो लास्ट ऑप्शन डी लिखा है ऑल ऑफ n बट फाइनाइटली मेनी, यहां वेरीफाई भी हो रहा है। और अगर ये सब जनरल एग्जांपल लेते तब भी वेरीफाई होता कि इसके बाहर कितने रहेंगे, रहेंगे तो फाइनाइट ही ना, बाकी सारे तो अंदर ही आएंगे ना। और उनके सफिक्स इकट्ठे कर रहा हूं, जिस नेचुरल नंबर के लिए मेंबर बिलोंग कर जा रहा है वो आ रहा है, जिनके बिलोंग नहीं कर रहा है वो नहीं आ रहे हैं, तो कितने को बिलोंग नहीं करेगा फाइनाइट के लिए, तो इट विल लीव ओनली फाइनाइट नेचुरल नंबर। कंफर्म, ठीक है। क्या मालूम इसी पे क्वेश्चन बना दे, वो यहां कर दे कुछ नंबर के, यहां पे कुछ फिक्स कर दे, यहां कुछ फिक्स कर दे, यहां पर कुछ भी मान लीजिए यहां से के ही फिक्स किया हुआ है, और ए आर बना रहा है, आर माइनस के प्लस 1, जो भी देख सकते हैं के अकॉर्डिंग मालूम चल जाएगा। यहां तो आर माइनस के आ जाएगा, यहां पर आर माइनस के, उतने बाहर होते रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट विच आर इक्वल टू n, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ n, नंबर ऑफ AIs विच आर इक्वल टू n, ये पूछ सकता है। नंबर ऑफ AI विच आर इक्वल टू n, देन हाउ मेनी एलिमेंट विच आर आउटसाइड, दैट काउंटिंग में बी डन। क्वेश्चन तो कैसे फ्रेम कर सकता है, एक बार ये क्लियर हो गया तो चार ऑप्शन कुछ भी फ्रेम कर लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कल हम लोगों ने कन्वर्जेंस के बारे में बात की थी। देखिए an इक्वल टू, जस्ट लुक एट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, an इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 एंड सो 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। दिस इज an। an प्लस 1 माइनस an इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस, बस समझ में आया ये? हाँ, ये आएगा शायद। स्ट्रांगली बोल दिया करो ना, किससे डर लगता है आप लोग को? मुझसे तो कोई नहीं डरता, मेरा स्टाफ भी कोई नहीं डरता मेरे से, ठीक है। ये आएगा ना, ये n प्लस 1 तक गया है, तो an प्लस 1 कहां जाएगा, n प्लस 1 तो n प्लस 2 तक जाएगा, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो इतना माइनस हो जाएगा, अकेला ये बचेगा, दिस व्हाट पॉजिटिव, सो सीक्वेंस an is more increasing, confirm। and now an equal to 1 plus 1 upon 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 minus 1 upon 3 1 upon n minus 1 upon n plus 1, ऐसे सकता हूं इसको मैं, and hence वहां तक कैंसिल होंगे, 2 minus 1 upon n plus 1, and this implies an is less than 2 and an is greater than 1, so an lies between 1 and 2, an is monotonic, an is bounded, and hence sequence an is convergent, है ना, that as we have seen। एग्जाम्पल नंबर अपना। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. 26 है ना, 25 भी लिख लेता हूं अभी पीछे कल कराए थे, जस्ट रिवाइजिंग दोस a n इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/n स्क्वायर. हियर ऑल्सो a n प्लस 1 माइनस a n इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है? a n इज 1 to n स्क्वायर, a n प्लस 1 विल बी 1 प्लस 1/n प्लस 1 स्क्वायर. सेपरेट करेंगे, ये बचेगा पॉजिटिव. सो सीक्वेंस a n इज इंक्रीजिंग. एंड इंक्रीजिंग को केवल अब शो करना होता है बाउंडेड, बिलो तो ऑटोमेटिकली होती है. एंड हियर a n इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन ये 2 स्क्वायर को लिख लिया मैंने, 1 इंटू 3 स्क्वायर लिख लिया, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं ऐसे. n स्क्वायर इज लेस देन n इंटू n माइनस 1. 3 को 3 इंटू 2 लिख दिया, ये हो गया लेस देन 1 n इंटू n माइनस 1. लिख सकता हूं ऐसे में. n स्क्वायर जो n स्क्वायर होता है वो n इंटू n माइनस 1 से तो बड़ा ही होता है ना, तो 1 अपॉन n स्क्वायर जो होगा 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 से लेस होगा. n इज नॉट n ग्रेटर देन 1, तो 1 तो अलग ही कर दिया मैंने, होगा. सो दिस इज a n इज लेस देन दिस, तो इट इज व्हाट 1 प्लस वही सेम आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन 3. ये कहां गया? ओफो, रुक जाओ. प्लस अब ठीक है, कट जाएगा, सब हो जाएगा वो. अगेन मोड ऑफ इंक्रीजिंग बाउंडेड, सो सीक्वेंस a n is convergent. Confirm. 2.7. Example. ठीक है, when n is greater than or equal to 4, n factorial is greater than 2 raised power 4, 2 raised power n. ठीक हो गई. when n is greater equal to 4, n factorial is greater than 2 raised power n. True. So 1 upon n factorial is less than 1 upon 2 raised power n. n greater than 4, because n equal to 1 पे ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो छोटा हो जाएगा. It increase after 4. ठीक है, when n is greater than or equal to 4. True. So summation 1 upon r factorial is less than summation 1 upon r 2 raised power r for r greater or equal to 4. Here say r vary from 4 to n, r vary from 4 to n. लिख सकते हैं ऐसे हम, 4 onward तो है ही ना. Now this a n equal to 1 plus summation 1 by r factorial, r vary from 1 to n, which is equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus summation 1 by r factorial, r vary from 4 to n, and this is less than ये जो भी नंबर है सम lambda plus summation 1 upon 2 raised power r, r vary from 4 to n. Confirm. And this is less than lambda plus mu. ये क्या आएगा? ये इनफाइनाइट सम बाउंडेड है. ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2, तो ये लैम्डा प्लस म्यू आगे नहीं आ गया, कुछ तो आएगा फाइनाइट सम. ओफो, इसे मर्फीज लॉ बोलते हैं, मर्फी लॉ. ये ऊपर भी रह सकता था, है ना. मर्फी लॉ कहता है इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल. नहीं पढ़ा बचपन में मर्फी लॉ, हम लोग कहते थे. मर्फी लॉ मीन्स इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल. मीन्स अगर आप मार्केट में चले जा रहे हैं किसी के साथ और चाहते कोई आपको ना देखे, तो वो देखता है जो रेडियो स्टेशन है पूरे मोहल्ले का. ठीक है, तो वो देखता है.
मतलब धोखे से अगर आप मतलब बिस्तर पर बैठ के सर्दियों में रजाई में बटर लगा रहे हैं स्लाइस पे और धोखे से गिर पड़े तो उस तरफ से गिरेगी ताकि खराब भी हो, ऐसे नहीं गिरेगी वो उसी तरफ से ताकि बटर लगे उसके ऊपर। ठीक है, बस वही हाल यहां पे हुआ। स्विच ऑन करो, आपके मतलब से सबसे लास्ट में मिलता है। 20-25 स्विच लगे हो और आपको ऑन करना हो तो मेजरली वो हाफ के बाद ही मिलेगा। इन सबको कहते हैं मर्फीज लॉ, बट इट इज अ मैथमेटिकल लॉ। मर्फीज लॉ सेज इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, मींस इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग इज नॉट जीरो इट विल अकर। टाइम मत पूछना कब, सीक्वेंस में व्हेन इट विल बी अराइविंग एट दैट पॉइंट नोबडी वांट्स। सो हियर दिस इज आल्सो आई हैव प्रूव्ड दैट दिस सीक्वेंस an, this sequence an is this sequence an। पहले तो an plus 1 minus an is 1 upon n plus 1 factorial, positive, so sequence an is increasing, and here an is less than equal to lambda plus mu, and both are constant. What is lambda? A finite number na, fixed. What is mu? Sum of this. So sequence an is bounded. True, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। Next, if n square I know it e to the power x square is greater than x square or not in terms of n as well, तो graphically है ना e to power x square exponential function and algebraic, this is true। so e to power minus n square so e to the power minus r square is less than 1 upon r square, तो summation r1 to n, summation r1 to n, this is bounded। अभी देखा हम लोगों ने ये our example number 25, so this is bounded। so if my an is equal to, बता दो इसको, ये नंबर था अपने इसमें, if an equal to 1 plus e to power minus 1 plus e to power minus 2 square plus e to power minus 3 square and so on e to power minus n square, this is, it is what, 1 plus summation e to power minus r square, r vary from 1 to n, this is ऐसे, and this is what, less than 1 plus summation 1 by r square, r vary from 1 to n, and this is less than m, so an is less than or equal to some m, that means what, sequence an is bounded। मैंने क्या ना, जैसे ही आपके सामने एग्जांपल आता है, ट्राई टू यूज योर ओन प्रीवियस इंफॉर्मेशन टू क्लेम इट इज बाउंडेड। जो अभी हमने यूज किया उसका इस्तेमाल करके यही प्रूव कर लिया। वो बात अलग है कि आज किया है, अभी आज तो ताज़ा आ जाए, एग्जाम हॉल में भूल जाएंगे हमने कौन कौन से बाउंडेड शो किए थे। बट यू हैव टू रिटेन ऑल दोज रिजल्ट विच हेल्प यू टू क्लेम सीक्वेंस इज बाउंडेड। आपको रिटेन करने पड़ेंगे वो रिजल्ट्स जिनसे आप क्लेम कर सकते हो कि मेरी सीक्वेंस बाउंडेड। समेशन 1 बाई आर स्क्वायर, दिस यू हैव क्लेम्ड इट इज बाउंडेड। समेशन 1 अपॉन n प्लस 1, r प्लस 1, r वेरी 1 to n, ये प्रूफ कर चुके हो, ये आगे कभी काम आएगा। ऐसे यहां पर हमने ये देखा, दिस इज व्हाट, दिस बाय सीक्वेंस, व्हाट इज a1 1, a2 1 plus 1 by e, what is a3 1 plus 1 by e plus 1 by e square, क्लियर। तो आप दिखा सकते हो यहां से, ये इसका इस्तेमाल किया हमने, ट्रू। तो बाउंडेड, और साथ में ये भी देख रहे हो कि जो a n प्लस 1 माइनस a n है, दैट इज व्हाट, e टू द पावर माइनस n प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, e टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। सीक्वेंस an क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बाउंडेड अब यहां तो जीरो था ही पॉजिटिव, तो यहां से बाउंडेड, यहां से मोनोटोनिक, तो सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। किसी को ये याद आया, किसी को कुछ और भी याद आ सकता है कि वो ये कहेगा सर E इज ये सिस्टम है पक्का। सो 2 raised power n is r is less than e raised power r, so e raised power minus r, और यहां पे स्क्वायर। Watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
और यहां पे स्क्वायर कर दो, यहां भी स्क्वायर कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, दिस समेशन ये कैसी सीरीज है? ज्योमेट्रिक सीरीज ही है ना। ये पूरा एन होता तब भी बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है। सीरीज की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये कैसा हो गया? ये वहां से कर लिया आपने। दैट डिपेंड्स विच लॉजिक यू आर यूजिंग, कौन किससे बड़ा है। अगर बड़ा वाले का पावर छोटी हो रही है, छोटे वाले की पावर तो और पहले छोटी हो जाएगी। इन केस बोथ आर मोर देन 1। भाई नंबर जब 1 से छोटा होता है ना, तो पावर करने पे नंबर छोटा होता है, बढ़ता नहीं है ना। क्लियर है ये? तो हमारे पास जितने एग्जांपल्स थे मेजरली हमने उनको डिस्कस कर लिया कि दे आर कन्वर्जेंट नॉट। खास तौर से अभी कुछ एग्जांपल बाकी हैं। एग्जांपल नंबर 23 ही बाकी है। 22 व्हाट इज 22? 1 + 1/2 + 1/n - 1 + 1/2 + 1/n। अभी ये बाकी है। 23 है ये, 23 है ये ना। हाँ, 23 स्टार्ट हुए थे। 8 × 5 = 13। 5 एग्जाम्पल थे वो वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 18 से 23 तक, 22 तक। सो वी हैव वेरियस एग्जाम्पल्स इन विच वी ट्राई टू फाइंड वेदर इट इज बाउंडेड और नॉट, मोनोटोनिक और नॉट, कन्वर्जेंट और नॉट. At least which are convergent we are trying to prove, and which are directly we can say not convergent but because of more than one limit point or because of unboundedness. वो भी रिजल्ट मेरे पास आ गया. जो अनबाउंडेड है उन्हें साफ बोल दे रहे भाई आप तो कन्वर्जेंट नहीं हो क्योंकि आप अनबाउंडेड हो. कन्वर्जेंस इंप्लाइज बाउंडेड, नॉट बाउंडेड नॉट कन्वर्जेंट. जिनके पास एक ज्यादा लिमिट पॉइंट है कन्वर्जेंस इंप्लाइज यूनिक लिमिट पॉइंट. जिनके पास एक ज्यादा है उन्हें साफ साफ बोल दिया कि आप कन्वर्जेंट नहीं हो. तो ये लिस्ट मिल गई ना कि जो जो इन दो की हेल्प से कह पा रहे हैं कि नहीं है कन्वर्जेंट, क्लियर. नाउ जिनको प्रूव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आर दोज टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दैट इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड मस्ट बी कन्वर्जेंट और अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस इफ इट इज कन्वर्जेंट देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. ये देखा ना हम लोगों ने. इफ a complementary pair of sequence converge to same limit. हाँ तो बोलना चाहिए ना आपको, तो ऐसे से देख रहा था एक दूसरे को. If a complementary pair of subsequence converge to same limit, then sequence is convergent. तो जब सीक्वेंस मोनोटोनिक हो तो वैसे ही करो, ट्राई करो, दिखा दे बाउंडेड. इफ इट इज नॉट मोनोटोनिक वी कैन गो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस एंड दैट वी हैव डन इन द अदर एग्जांपल्स लाइक 9th, not 9th, 11th, 12th एंड 24. इन तीन एग्जाम्पल मैंने देखा. एग्जाम्पल नंबर 11, an+1 = 2 = 1/2 an+, ये मैंने कल आपको दिया था. एग्जाम्पल नंबर 12, an² = an into an+1. Here a1 is less than a2. Here also a1 is less than a2. Suppose given. An example number 24. an = 1 - 1/2 + 1. नंबर कंफर्म कर दो भाई, अभी गड़बड़ हुआ है. यही है ना, ठीक है. ये इन तीनों को देखो, दे आर नॉट मोनोटोनिक बिकॉज हियर a1, a3, a2. Here a1, a3, a2. And here a1 = 1, a2 = 1 - 1/2 and a3 = 1 - 1/2 plus 1/3. So what is a3? a3 is 5/6. So a1 तो मेरा a1 से तो छोटा है और a2 से बड़ा है. ये अर्थ हो गया. तो इन तीनों एग्जाम्पल में नोटिस कर रहा हूं माई सीक्वेंसेस आर नॉट मोनोटोनिक बट लकीली ऑल दीज 3 सीक्वेंसेस हैव कॉम्प्लीमेंट्री ऑड इवन सब सीक्वेंसेस विच आर मोनोटोनिक. है ना, ऑड इवन कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस विच आर मोनोटोनिक. इन तीनों में देखा हम लोगों ने और फिर उनको प्रूफ कर दिया कि दे आर कन्वर्जेंट टू सेम लिमिट. किया था, दोबारा तो जरूरत नहीं है. कल छापने से मना किया था, आज लिखवा नहीं रहे. क्या बेईमानी है. ठीक है ना, समझ गए ना. तो इसी से हम लोगों ने क्या किया कि इस पे सब में तो जो ये था इसमें प्रूफ किया था फॉर
example number 11 and 12, we have A2K, A2, A4, A6 or bounded below by A1 and A2K minus 1 equal to A1, A3, A5 or bound above by A2. देख सकते हो इसको. So both are monotonic, bounded and bounded, so both are convergent. ये भी convergent, ये भी convergent. This is sequence itself. This is sequence itself. So this is monotonic, but all the terms lie between A1 A2. All the terms lie between A1 A2. इन दोनों सीक्वेंस के सारे टर्म है तो A1 A2 के बीच में ही ना. When sequence is bounded, every subsequence is bounded. तो ये भी bounded हो गई, ये भी. तो दोनों monotonic, दोनों bounded, so दोनों convergent. Now what remains to show? They converge to same limit. I am using here algebra of sequence. Sum of two convergent sequences again convergent. I'll just mention after this. If A and Bn are convergent, then the other results, An plus Bn, An into Bn, An upon Bn, Bn is non-zero and not converge zero. In this way, mod An, mod Bn, maximum of A and Bn, minimum of A and Bn, these are results of algebra of sequences. Clear यहां तक तो? फिर आपने प्रूफ किया था कैसे दोनों की लिमिट. अब आपने जैसे प्रूफ किया कि A2 के कन्वर्जेंट है तो इसकी हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी. और कहां? वही जहां ये जा रही है. इफ इट टेंड्स टू L1, so A2 power k is also tending to L1. A2 power k plus 2 again even, but odd वाली odd पे जाएगी. A2k minus 1 comes to L2, so A2 power k plus 1, this is always odd, so this converges to L2. But these are three consecutive, 2 to the power k plus 1, या 2 to the power k plus 1 plus 2. ये इसी फॉर्मेट में है कि नहीं है? नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट. यहां रखा, लिमिट अप्लाई की, क्या आ गया? L1 equal to L2. So we could claim these two examples have complementary subsequences which are converging to same limit. Where we don't know, not even required. ये तो निकाल भी लिया था. 3/2 आया था इसका, 2/3 आया था, 2/3 आया था इसका 2/3 आया था. अगर मैंने A1 0 ले लिया और A2 1 ले लिया तो 2/3. अदरवाइज इसकी लिमिट क्या आई थी? A1 प्लस 2A2 अपॉन 3, और इसकी लिमिट A1 इंटू A2 स्क्वायर टू दी पावर 1/3. ठीक है? दिक्कत यहां पे? बोल दे भाई. हाँ. एनी प्रॉब्लम? नो, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग नो. ठीक है. And then this is one of the most important example I used to discuss. I'll discuss this again in some different way. देखिए, सीक्वेंस सीखने का एक ही तरीका है जो बाबा रामदेव सिखाते हैं. क्या बोलते हैं? करने से होगा, है ना? You have to solve, take up example and start solving. मेरे बोलने थोड़ी होगा कि मैंने ऑड देख लिया, इवन देख लिया. यू स्टार्ट एट दिस इज फंडामेंटल. इवन 10th 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट दे कैन फाइंड आउट कि ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. यू हैव टू चेक वेदर दे आर मोनोटोनिक और नॉट, एंड यू गो एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, यू विल फाइंड आउट कि ऐसा हो रहा है. ठीक है? इस एग्जाम्पल्स की हेल्प, ये मेरा कन्वर्जेंट प्रूफ हुआ था. कैसे? और इसकी मैंने इवन और ऑड अलग अलग करके, वही जो हमने एक इसकी इवन, मैंने इसको अलग पर्पसली कर लिया था कि देखिए ये सीक्वेंस है अपने आप में. तो ये A2K लिया था और CK इज A2K minus 1. Then I proved BK plus 1 minus BK is positive, and this implies BK is monotonic, and then proved that BK is less than A1 for all. So increasing bound above. इसमें तो दिखाई दिया था कैसे प्रूव किया था. इसका जनरलाइज वर्जन भी दिया था मैंने इसका. तो दिस इज इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव कन्वर्जेंट. ऐसे इसको दिखा दो. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो कन्वर्जेंट. ठीक है? बाउंडेड बिलो. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Below convergent. So if both are convergent, then it just remain to show their limit is equal. Then this is convergent. तो वो भी शो किया था कि लिमिट बी के माइनस सी के इक्वल टू L1 माइनस L2 इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 अपॉन माइनस के साथ 2k विच इज 0. सो L1 इक्वल टू L2. ठीक है. एंड देन वी फाउंड लिमिट ऑफ an. यहां से इस एग्जांपल से या इस एग्जांपल से हमने लिमिट निकालना शुरू किया था. Before I go for limit, let's solve one more. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and Jam. Visit our website or click on the link highlighted to know more.